आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 फॉर फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। सो इसमें आपका जेडपी का एग्जाम है, डीएचएस का है, ईएसआईसी का है, एम्स का है। तो सभी एग्जाम्स के लिए दिस इज द मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ। So option A quinolones, option B azoles, option C sulfonamides, and option D taxol. So what is the answer? C. C, that is sulfonamides. Okay. So crystal urea is the side effect of sulfonamides. Next question. The Drugs and Cosmetic Act was passed in option A 1940, option B 1945, option C 1947, and option D 1946. 1940. Yes, Drugs and Cosmetic Act was passed in 1940. Next question. Which of the following is a female sex hormone? Option A stilbestrol, option B testosterone, option C estrogen, and option D benzestrol. Option C, estrogen. Correct. Estrogen is the female sex hormone. Next question. Chloroquine is a option A 4-aminoquinoline, option B acridine, option C biguanide, option D pyrimidine. Yes, chloroquine. 4-aminoquinoline. It is 4-aminoquinoline. So chloroquine is an anti-malarial drug, right? It is an anti-malarial drug and it belongs to the 4-aminoquinoline group. Next question. In the pediatric dose calculation, children in the first 20 days of birth come under the class of option A infant, option B child, option C neonatal, option D just born. Yes, Sangha. Neonatal. Yes, those are the neonatal. Okay, so children in the first 20 days of birth are neonatal. Okay, next question. Thioglycolic acid like compounds has application in cosmetic in option A depilatory preparation, option B epilatory preparation, option C fragrance, and option D polymorph inhibitor. Depilatory preparations. Yes, depilatory. And what does it mean? What is depilatory preparation? So depilatory preparations are chemical preparations used to remove the hair. Hair removal cream आप लोगों को पता है. सो हेयर रिमूवल क्रीम में मतलब केमिकली जब हेयर रिमूव किए जाते हैं देन इट इज नोन एज डेपिलेशन. सो रिमूवल ऑफ हेयर विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स is known as depilation. ठीक है. So depilatory preparations means hair removal preparations. तो thioglycolic acid जो होता है वो यूज होता है as depilatory preparation, that means hair removal preparations. Okay. Then next question. The role of glycine as tablet excipient is as option A amino acid supplement, option B fungal growth inhibitor, option C lubricant, ऑप्शन डी स्वीटनर. स्वीटनर राइट. ग्लाइसिन क्या है केमिकली? व्हाट इज इट? केमिकली व्हाट इज ग्लाइसिन? Protein. इट इज अमाइनो एसिड. ग्लाइसिन इज अमाइनो एसिड. केमिकली ग्लाइसिन इज अमाइनो एसिड. ठीक है. तो ग्लाइसिन इज अ स्वीटनर बट ये अमाइनो एसिड स्वीटनर है. इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. नॉर्मली स्वीटनर्स जो होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. शुगर जो है दैट इज कार्बोहाइड्रेट बट दिस स्वीटनर ग्लाइसिन इज अमाइनो एसिड. इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट क्वांटिटीज ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल आर टू बी मिक्स्ड टू मेक 800 ml of 65% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल? सो ऑप्शन ए 480 ml of 95% and 320 ml of 45% alcohol. Option B 320 ml of 95% and 480 ml of 45% alcohol. Option C 440 ml of 95% and 360 ml of 45% alcohol. And option D 360 ml of 95%
and 440 ml of 45% alcohol. So what is the correct answer? Option B. Option B, that is 320 ml of 95% and 400 ml of 45% alcohol. So आपने कैसे कैलकुलेशन किया इसका? बाय विच मेथड? कैसे किया है कैलकुलेशन? कौन सी मेथड है इसके लिए? एलिगेशन मेथड, करेक्ट, एलिगेशन मेथड. तो ये जो मेथड है एलिगेशन मेथड, सो इसके अंदर में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक कि ये किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है. ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं. इस स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कैलकुलेशन का एग्जांपल है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हाउ मच ऑफ 90% एंड 20% ऑफ अल्कोहल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 350 ml ऑफ 60% अल्कोहल. ठीक है, सो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो एलिगेशन मेथड्स होती है, इसमें पहले जो क्वांटिटी दी गई है, जो डेटा गिवन है, वो हम एक साइड में ले लेते हैं. जैसे यहाँ पे 90% एंड 20% दिया गया है, तो हमने यहाँ पे पहले 90% नोट कर लिया, देन हमने 20% नोट किया. ओके, उसके हमने हमें क्या प्रिपेयर करना है, तो हमें 60% स्ट्रेंथ प्रिपेयर करना है. 60% स्ट्रेंथ प्रिपेयर करना है, तो हमने 60% को सेंटर में ले लिया. ओके, देन हम क्या करेंगे, तो 90 माइनस 60, और जो रिजल्ट आएगा उसको इसके सामने में लिख देंगे, मतलब 30. 90 माइनस 60 कितना? 30. तो ये जो 30 है, तो 30 पार्ट्स ऑफ 20% अल्कोहल हम लेंगे. 30 पार्ट्स ऑफ 20% अल्कोहल. उसी तरह से 20 माइनस 60 करेंगे, तो ये आ गया आपका 40. सो 40 पार्ट्स ऑफ 90% अल्कोहल हम लोग लेने वाले हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन किया जाता है. अब यहाँ पे हम 40 प्लस 30 ऐसा 70 कर लेंगे. टोटल पार्ट्स कितने हो गए हमारे? 70 पार्ट्स हो गए. तो 40 पार्ट्स 90% अल्कोहल प्लस 30 पार्ट्स ऑफ 20% अल्कोहल हम करते हैं, तो हमें 70 पार्ट्स ऑफ 60% अल्कोहल मिल जाता है. 70 पार्ट्स ऑफ 60% अल्कोहल मिलता है. नाउ 70 पार्ट्स ऑफ 60% अल्कोहल में 40 पार्ट्स 90% अल्कोहल का है. ठीक है, 70 पार्ट्स ऑफ 60% अल्कोहल में 40 पार्ट्स ये 90% अल्कोहल का है. तो 350 ml ऑफ 60% अल्कोहल में कितना ml 90% अल्कोहल रहेगा. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 70. ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 350, यह फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ठीक है, 70 में से 40 पार्ट्स है, तो 350 में से कितना रहेगा? ओके, तो उसके लिए 40 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 350, तो ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे. उसी तरह से यहाँ पे 20% अल्कोहल हमें निकालना है. सो वी नो दैट कि 70 पार्ट्स ऑफ 60% अल्कोहल में 30 पार्ट्स ऑफ 20% अल्कोहल है, तो 350 ml ऑफ 60% अल्कोहल में कितना ml 20% अल्कोहल रहेगा. तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 30 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 350. तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं. और इस मेथड से, दिस इज द एलिगेशन मेथड, इस मेथड से हम लोग ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ये समझ में आ गया है ना आपको? अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Then, in the preparation of tablets, lubricating agents are used to: option A, break the tablet; option B, improve strength and hardness; option C, prevent sticking; and option D, increase the bulk. So, which one? C. C, correct answer. C, option C is correct answer. So to prevent sticking, okay, lubricants are used to prevent sticking. Okay, then next question 10. What is the HLB range for WO emulsifying agent? Option A 8 to 18, option B 3 to 6, option C 7 to 9, option D 13 to 15. 3 to 6. 3 to 6 करेक्ट. ओके, सो यहाँ पे WO इमल्सिफाइंग एजेंट है, मतलब वाटर इन ऑयल है.
वाटर इन ऑयल मतलब लिपोफिलिक होगा, लिपोफिलिक के लिए लोअर रेंज होती है। जब हमने HLB डिस्कस किया था उस समय मैंने बताया है, ठीक है। सो HLB दैट इज हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। तो WO एमल्सिफाइंग एजेंट्स के लिए मतलब लिपोफिलिक एमल्सिफाइंग एजेंट्स के लिए HLB रेंज लोअर होती है, दैट इज 3 to 6। ओके